Hello everyone. Today is our introductory class in economics. But before we understand what is an economy or what economics is, let's first look at this channel that what this channel is all about. Here we are going to understand core economic concepts in the most simple and rational manner. Who all can benefit from these videos? Students of class 11th and 12th, college students wanting to learn econ basics, UPSC aspirants seeking clarity in economics concepts, any other competitive exam student scared of economics, or an econ enthusiast and a learner just like me. So, who am I? I'm an econ enthusiast. I did my class 12th from commerce in 2018. I scored 99 out of 100 in economics. I scored 96 out of 100 in accountancy and 94 out of 100 in business studies. After that, I did my graduation in BA Economics and Sociology from Kamala Nehru College, University of Delhi. Then, as everybody was doing it in those days, I also prepared for UPSC. I wrote four prelims, but I could not clear any because I could either clear the GS like I did in 2023 or I could clear only CSAT like I did in 2024 and 2025. But I could not clear them together, so I could not clear my UPSC prelims. However, one thing remained constant: my love for teaching and learning. If anything became crystal clear with these attempts was my passion for teaching economics. I have been teaching economics to students since 2018 and was also part of NSS teaching program of my college. I find the subject very rational and organized, and it somehow brings symmetry and logic in this chaotic world. I hope it does the same for you. Let's understand the content and scheme of this channel now. In the very beginning, we are going to start this NCRT concepts series where we are going to complete the microeconomics. We are going to complete the entire macroeconomics, complete Indian economic development, and also what nobody does, we are going to complete statistics for class 11 students. These all are going to be on based on NCRT, and all this will be completed in the most logical sequence to make your understanding easy and comprehensive. This will make your interlinkages between the topics and concept very easy. Economics and life will get into sync for you, and your econ knowledge won't be limited to books only, as you are going to be applying it everywhere. So, without any further ado, let's begin this journey. So, what is an economy? Or is it same as economics? Let's see it. Economy is a system which provides people the means to work and earn a living. Now, what is a system? System means it is a bunch of parts that work together in a connected way to achieve a common goal. सिंपल भाषा में कहूँ तो सिस्टम में बहुत सारे छोटे बड़े अलग अलग पार्ट्स साथ में मिलकर काम करते हैं, कनेक्टेड तरीके से काम करते हैं एक कॉमन गोल को, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, लिवर, एवरीथिंग. ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं. उसके बाद ही हमारी बॉडी एक सिस्टम बनती है. बिकॉज ऑफ इट वी आर एबल टू लिव, वी आर अलाइव. ओके, आई होप सिस्टम इज क्लियर. ऐसे ही कार के एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं. जैसे कार के अंदर भी अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं. कार का इंजन होता है, वो ब्रेक्स होते हैं, एंड द एंटायर बॉडी ऑफ कार इज देयर. ऑल दीज मेक अप द एंटायर सिस्टम ऑफ कार, जिस वजह से कार, जब ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड तरीके से काम करते हैं तो कार कीप्स रन, उसकी वजह से ही कार चल पाती है. ओके, देन इकोनॉमी कैसे सिस्टम है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. इकोनॉमी भी अपने आप में एक सिस्टम है. क्यों? इकोनॉमी के अंदर भी अलग अलग इकोनॉमी के पार्ट्स होते हैं जो साथ में मिलकर उसे रन करवाते हैं. कैसे? इकोनॉमी के अलग अलग पार्ट्स कौन हुए? हमारे प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं. ओके,
ओके, जैसे हमारे फार्मर्स हो गए जो हमारे गेहूं, हमारे सीरियल्स और इन सब चीज़ों को उगाते हैं एंड फाइनली ताकि हम उसे कंज्यूम कर सकें, तो हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए। देन वी हैव द कंज्यूमर्स जो उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है? उस चीज़ को फाइनली यूज़ कर लेना। जैसे अगर खाना है तो उसे खा लेना, अगर कोई कपड़े हैं तो उसे पहन लेना ताकि आप उसको डेली वेयर कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। सो दिस इज कंजम्पशन। तो इकोनॉमी के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। प्रोड्यूसर्स हो गए, कुछ लोग कंज्यूमर्स हैं, कुछ लोग दोनों हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों हैं। ये सब चीजें की मदद से लोग अपनी क्या कर रहे हैं? दे आर अर्निंग, दे आर लिविंग। इन सब से वो पैसे कमा रहे हैं ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें, जो लोगों को उनकी मीन्स टू वर्क एंड लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है, ऐसी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ऐसे सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे लोग अपनी लाइवलीहुड कमा सकें और एक अच्छी लाइफ लिव कर सकें। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे इंडियन इकोनॉमी। अब इंडिया एक कंट्री है, हमें पता है। अब इंडिया के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी लोग कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, भले ही वो खाना हो, वो सीरियल्स हो, भले ही वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हों, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करना, जैसे आईपैड और हमारा बुक्स एंड एवरीथिंग, फर्नीचर, तो ये भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। एंड किसी भी और कंज्यूमर्स हैं, जैसे आप और मेरे जैसे लोग जो हम इन सब चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी के सारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, ये अलग अलग टर्म्स हैं जो हम धीरे धीरे समझेंगे इस सब्जेक्ट के साथ साथ। तो उन सबको मिला के इंडियन इकोनॉमी बनती है। ठीक है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी भी हमें ऐसी चीजें दे रही है जिससे हम हमारा बिजनेस, हमारी चीजें, हमारी पैसा कमा सकते हैं और उस पैसे से हम हमारी लाइवलीहुड अच्छी कर सकते हैं, हम अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। ओके। देन इकोनॉमी इज नॉट ओनली स्मॉल एज इंडियन। ऐसे सिर्फ इंडियन इकोनॉमी ही नहीं है, ऐसे ही वर्ल्ड में बहुत सारी इकोनॉमी है, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज हैं, तो उनकी भी अलग अलग इकोनॉमी है। और सबसे बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमी भी है, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आप लोगों के भी फ्रेंड्स, नोन्स, रिलेटिव्स होंगे जो बाहर यूएस रहते होंगे, यूके रहते होंगे, फ्रांस रहते होंगे, वो वहाँ से आपके लिए गिफ्ट्स भेजते होंगे। तो इसका मतलब हम वहाँ से भी चीज़ें यहाँ लेके आ सकते हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी बाहर से सामान आ सकता है और हम भी बाहर वालों को सामान यहाँ से भेज सकते हैं। तो ये पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड की आज की डेट में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। तो इसके कारण देर इज ऑल्सो वर्ल्ड इकोनॉमी। जब हम वर्ल्ड के सारे प्रोड्यूसर्स, सारे कंज्यूमर्स को आपस में मिला देते हैं तो इट इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। फिर जब हम उसको इंडिया के लेवल पे ले आते हैं तो वो इंडियन इकोनॉमी है। इससे छोटा भी हो सकता है, स्टेट इकोनॉमी। हमारी कंट्री में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, आप सब भी अलग अलग स्टेट से आते होंगे, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, इन सभी स्टेट से आप आते होंगे। तो हर स्टेट की भी अपनी अपनी इकोनॉमी है। जब हम सिर्फ उसी स्टेट के प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, मार्केट, उन सब चीज़ों को देखेंगे, ओके। और उससे छोटा भी हो सकता है, एक सिटी की इकोनॉमी भी हो सकती है। आप जिस भी शहर से आते होंगे उस सिर्फ शहर की भी एक इकोनॉमी होती है। जैसे अगर आप दिल्ली दिल्ली चेन्नई, मुंबई, पुणे, इन सब स्टेट सिटीज से आते हो तो इन सिटीज की भी इकोनॉमी है। और इनसे भी छोटा अगर आप किसी गांव से भी आते हो तो उस गांव की भी एक छोटी सी इकोनॉमी होती है। ओके। So economy can be as big as the world economy or it can be as small as a village economy. I hope economy is clear now. तो इकोनॉमी करता क्या है? इकोनॉमी प्रोवाइड्स लिविंग टू पीपल। हमने अभी देखा वो आपको मीन्स टू लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। पर वो कैसे करता है? इट डज इट विद द हेल्प ऑफ वाइटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। व्हाट आर द वाइटल मीन्स नेसेसरी? व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट नेसेसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज? उससे पहले जान लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही क्या होती हैं। Economic activity is any work people do to make money, produce goods, or provide services. Usually, it involves money or value changing hands like salary or fees. अब इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई भी काम जिसको आप करने के अगर अगर आप वो काम करते हो तो उसके बदले में या तो आपको पैसे मिलते हैं या फिर उस चीज से किसी भी काइंड ऑफ वैल्यू जनरेशन होता है, या फिर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो इन सब को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी आपको
सर्विस, जैसे कोई एक फार्मर है, वो ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पर वो प्रोडक्शन का काम कर रहा है, ही इज़ प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ गुड। ओके, एक फर्नीचर मेकिंग कंपनी है, वो फर्नीचर बना रही है वुड से, तो वो भी एक कुछ प्रोड्यूस कर रही है, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, आई एम टीचिंग यू, टीचिंग इज अ सर्विस, ठीक है, वो फिजिकली आप टच फील नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्विस है, तो टीचिंग इज अ सर्विस, आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विस, सो आई एम ऑल्सो डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीट करता है, ही इज ऑल्सो डूइंग एन इकोनॉमिक सर्विस, ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज। ओके, और एनीथिंग दैट हेल्प्स यू मेक मनी is a part of economic activity. ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। कौन सी चीज, अगर ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुआ? ऐसी चीज जिसके बदले में आप आपको पैसा नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग मनी इन रिटर्न ऑफ इट। मोस्टली मनी के रिलेटेड ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटी ही मानते हैं, क्योंकि वी कैन कैलकुलेट इट। नॉन मॉनेटरी चीज़ों को कैलकुलेट हम नहीं कर पाते हैं। जैसे आपके घर पे आपकी मम्मी आपकी जो केयर करती हैं, जो केयर इकोनॉमी कहलाती है, बाद में हम कब पढ़ेंगे, कभी लेटर ऑन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ केयर इकोनॉमी। पर आपकी मम्मी आपकी केयर करती है, सुबह से शाम आपके लिए खाना बनाती हैं, आपका ध्यान रखती हैं, आपके कपड़े वॉश करती हैं, एवरीथिंग योर मदर डज फॉर यू, आपका पूरा ध्यान रखती हैं। इस चीज़ के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, राइट? सो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें हो रही हैं, बट क्योंकि हम उसे मॉनेटरी टर्म्स में, किसी की केयर को, किसी के प्यार को हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बता सकते, इसलिए इट्स पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑल द इमोशनल वर्क दैट इज डन इज पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर बाकी सारा ट्रांजैक्शन फॉर्म में जो भी किया हुआ काम होता है, जिसके एक्सचेंज में या तो मनी मिलता है या फिर कोई वैल्यू एडिशन होता है, तो हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। देन, तो हमारी इकोनॉमी हमें लिविंग प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी होती हैं। तो व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज? फर्स्ट इज प्रोडक्शन, देन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग। प्रोडक्शन का सिंपल मतलब होता है कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक है। जिस प्रोसेस से हम एक वुड से फर्नीचर बनाते हैं, उस पूरी चीज को, वुड एक रॉ मटेरियल हो गया, कि वुड एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने वुड लिया और फिर उससे उसको पॉलिश करके, उसको कट करके, उसको शार्पन करके दे मेड अ फर्नीचर आउट ऑफ इट। सो द फाइनल प्रोडक्ट इज द फर्नीचर, जो टेबल चेयर हम यूज कर रहे हैं। इन इसका जो ये प्रोसेस है, उस वुड से फर्नीचर का एंड प्रोडक्ट टेबल चेयर बनाने को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव कंजम्पशन। कंजम्पशन इज टू कंज्यूमिंग समथिंग। अब जो प्रोड्यूसर ने जो वो फर्नीचर बना दिया है, उस फर्नीचर को यूज करना। वो फर्नीचर मैंने खरीद लिया, अब मैं उसको फाइनली यूज करूंगी। अगर वो टेबल है, तो मैं उस टेबल पे अपना सामान रख के अपने घर में उसको यूज करूंगी, सो दिस विल बी कंज्यूमिंग द टेबल। ओके, या फिर कोई खाने की चीज़ है जो हमारे फार्मर ने हमारे लिए वीट, राइस, बार्ली कुछ भी प्रोड्यूस किया, उसे अगर हम बाद में यूज करते हैं, खा लेते हैं, तो इट विल बी consuming that. Okay, so this is consumption. Consumption is finally using something, okay, consuming it for your end use. आपकी satisfaction, अपनी wants को satisfy करने के लिए आप किसी चीज को जब यूज करते हो, तो उसे हम consumption कहते हैं। देन थर्ड इज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज़ के अंदर आज पैसा लगाना और उसके रिटर्न्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे, आज ही रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। आप सब ने थोड़ा बहुत सुना होगा स्टॉक मार्केट और एफडी करवाना। एफडी तो आई थिंक सब ने ही सुना होगा, जब हम बैंक में एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, आप आज पैसा लगाते हो एंड आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड ऑफ, मेच्योरिटी मतलब 10 साल के बाद, 5 साल के बाद में आप उस पैसे को उससे ज़्यादा की वैल्यू में बाहर निकालते हो। तो दिस इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू। पर अगर ये फिर भी अभी भी क्लियर नहीं होते हैं, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट एट ऑल, बिकॉज ये बहुत ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी में। दे आर द बेस ऑफ इकोनॉमी, बेस ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। तो हम इनको बहुत अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ेंगे। प्रोडक्शन पे पूरा चैप्टर है, कंजप्शन पे पूरा चैप्टर है, इन्वेस्टमेंट पे पूरा पूरा चैप्टर है। तो आप इन सब से डरो मत, थोड़ा थोड़ा अभी हमें बस सब्जेक्ट से अपने आप को फेमिलियर करवाना है। ओके, सो हमें इकोनॉमी तो समझ में आ गई कि एक सिस्टम होता है जो लोगों को मीन्स टू लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, ठीक है। आफ्टर दैट, सो क्या इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स सेम है? तो अब इकोनॉमिक्स भी समझ लेते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है।
So what is an economics? What is economics then? So it is a study of, it is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources, which have alternate uses, to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. माय गॉड, सो मेनी टर्म्स, बट नी नॉट टू वरी अबाउट इट। हम धीरे धीरे एक एक टर्म को समझते हैं। जिन टर्म्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे टर्म्स ही की टर्म्स हैं, और ये अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि हमें सिर्फ ये तो बताता ही है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, बट इट ऑल्सो टेल्स अस व्हाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स इन द फर्स्ट प्लेस। और थोड़ा बहुत तो ये भी बता देता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ता क्या है अपने आप में, हम उसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इस चीज़ को समझते हैं। सिंपली मैं अगर बोलूँ कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो क्योंकि अभी हमने इकोनॉमी समझ लिया था, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमी को पढ़ता है। वो इकोनॉमी कोई भी हो सकती है, इंडियन इकोनॉमी भी हो सकती है, वर्ल्ड इकोनॉमी भी हो सकता है। तो हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं। इकोनॉमी हमने देखा था एक सिस्टम है जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इकोनॉमिक्स उस सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स को भी पढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी को पढ़ने के लिए इकोनॉमी के पार्ट्स पढ़ने ज़रूरी हैं, और इसीलिए इकोनॉमिक्स दोनों को पढ़ेगा। तो कैसे पढ़ता है, अब हम देखते हैं। इट इज़ अ सोशल साइंस। अब सोशल साइंस क्या होता है? सबसे पहले साइंस क्या होता है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट मीन्स कि किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने को हम साइंस कहते हैं। ठीक है, ये बचपन में हम स्कूल में देखते थे ना, हमारी साइंस की बुक अलग होती थी, हमारी सोशल साइंस की बुक अलग होती थी, तो इनमें क्या डिफरेंस होता था। आज हम समझेंगे कि उसको साइंस ही क्यों बोलते थे और इसको सोशल साइंस ही क्यों कहते थे। ओके, तो इकोनॉमिक्स कैसे साइंस हुआ? इकोनॉमिक्स एक ऐसे साइंस है बिकॉज इट स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, इकोनॉमिक बिहेवियर, जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं उन लोगों के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं सिस्टमैटिकली और ऑर्गेनाइज तरीके से। इसीलिए ये एक साइंस है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ोगे तो वो साइंस कहलाता है, और इकोनॉमिक्स भी कर रहा है। ठीक है, वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। ओके, बट वाई इट इज नॉट कॉल्ड साइंस ओनली देन? अब हम उसे सोशल साइंस क्यों कह रहे हैं? इट इज कॉल्ड अ सोशल साइंस बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन बिहेवियर एंड नॉट द नेचर। ह्यूमन बिहेवियर और नेचर में क्या डिफरेंस हुआ? जो हम नॉर्मल साइंस पढ़ते थे, जो एग्जैक्ट साइंसेस कहलाते हैं, जो जिसे नेचुरल साइंसेस भी कहा जाता है कई बार, नेचुरल साइंसेस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो हम बायोलॉजी, ये सब जो हम पढ़ते थे स्कूल के अंदर, ये सारे सब्जेक्ट्स नेचर को स्टडी करते हैं। नेचर के अंदर क्या बेनिफिट होता है? किसी भी एक रिएक्शन का सारे के सारे लोगों पे सेम ही रिएक्शन होने वाला है। कैसे? जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी हमने पढ़ी थी। तो ग्रेविटी वर्क्स इन द सेम वे ऑन अ ह्यूमन बीइंग एंड ऑन एन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इस टेबल, चेयर, आईपैड, पेन, पेंसिल, सबके ऊपर वो सेम तरीके से ही काम करेगी ग्रेविटी, जैसे कि वो मुझ पे या आप पे करेगी। वो मुझ में और आप में भी डिफरेंशिएट नहीं करेगी कि मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, हम दोनों पे वो अलग अलग तरीके से काम करेगी। नो, इट वर्क्स ऑन एवरीबडी इन द सेम वे। बट क्या ह्यूमन बिहेवियर सेम होता है? नहीं। हर इंसान का किसी भी चीज़ पे रिएक्शन अलग अलग होता है। मैं किसी चीज़ पे अलग तरीके से रिएक्ट करूंगी, आप किसी चीज़ पे अलग तरीके से रिएक्ट करोगे। बिकॉज because economics is studying human behavior, that's why it is a social science, not an exact science. वो ह्यूमन बींग्स का इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी करता है, इस वजह से वो एक सोशल साइंस कहलाता है। आई होप व्हाट इज सोशल साइंस एंड साइंस अब आपको क्लियर है। सो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, हमने देखा कैसे, विथ स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस। अब क्या कर रही है सोसाइटी? सोसाइटी को चूज करना पड़ रहा है। तो वाई सोसाइटी चूजिंग इन द फर्स्ट प्लेस? सोसाइटी को चूज ही क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज देयर इज प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी इन द सोसाइटी। अब ये स्केर्सिटी क्या भला है? Scarcity refers to limitation of supply in relation to demand for a commodity. इसका मतलब होता है कि when the wants of people are more than the available resources. सिंपल भाषा में आपको बताऊं मैं तो, कि जब जो भी चीज़ें लोगों को चाहिए होती हैं वो जितनी अवेलेबल है उससे ज़्यादा लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा लोगों को वो चीज़ यूज़ करने के लिए चाहिए। जैसे जैसे हम हिंदी में नहीं कहते हैं, एक अनार 100 बीमार वाली जो प्रॉब्लम होती है, कि अनार एक ही है पर उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको चाहने वाले, उसको खाने वाले लोग एक से ज़्यादा हैं।
तो इस प्रॉब्लम को ही स्कैरसिटी की प्रॉब्लम कहा जाता है कि रिसोर्स कम है कंपैरिजन में किसके, जो लोग उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, जो लोग उसे यूज करना चाहते हैं। तो स्कैरसिटी के कारण क्या प्रॉब्लम होती है? इट कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? इसका सिंपली मीनिंग होता है टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज मतलब किसी भी चीज को अच्छे तरीके से उसके बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना, ताकि रिसोर्स का कोई वेस्टेज ना हो। उसे बिना वेस्ट किए हुए, उसकी सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ किए हुए अगर आप किसी भी रिसोर्स को यूज़ करते हो तो उसको ऑप्टिमम यूज़ या फिर इकोनॉमिक यूज़ ऑफ रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है। देन स्केर्सिटी के कारण क्या होता है? स्केर्सिटी और लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है कि रिसोर्सेज कम है, कि एक ही अनार है और इतने सारे लोग खाने वाले हैं। एक और प्रॉब्लम है, द रिसोर्स हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल द रिसोर्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब एक चीज को बहुत सारे तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल कैसे लें? जैसे आप समझिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक रिसोर्स है। ओके। इलेक्ट्रिसिटी को हम हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे हम घर में यूज करते हैं हमारे फैन, एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह रन करने के लिए, हमारे आईपैड, लैपटॉप, फोन्स इन सबको चार्ज करने के लिए। ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक तो हम घर में कंजम्पशन कर सकते हैं, घर में भी इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम हमारे ईवी, आजकल सारे के सारे जो व्हीकल्स हैं वो हाइब्रिड व्हीकल्स, ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, हम सबको पता है। तो उनके जो बैटरीज होती हैं, जो लिथियम बैटरीज हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होती हैं, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का एक अलग यूज़ होता है। देन हमें पता है कि आजकल जो हमारी ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स के सारे रूट्स इलेक्ट्रीफाइड हैं। हमारी ट्रेन्स भी आजकल इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रन करती हैं। पहले सारी की सारी कोल पे रन करती थी बहुत पहले, फिर लेटर ऑन हमने डीजल इंजन पे शिफ्ट किया था, एंड नाउ ग्रेजुअली अब वो मोस्टली सारी की सारी इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिसिटी के हमें बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं। एक ही रिसोर्स है जिसका घर में भी यूज हो रहा है, कार्स में भी यूज हो रहा है, और इवन ट्रेन्स में भी यूज हो रहा है। देन अनदर एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे हमारा पेट्रोल। अब पेट्रोल भी हम घर जैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे पर्सनल व्हीकल के अंदर, हमारे कार्स में, हमारे ट्रक्स के अंदर, हमारी और भी आपकी पर्सनल बाइक, स्कूटी जो है, उन सब में भी पेट्रोल का यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा कैसे यूज़ होता है पेट्रोल? पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ होता है, एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, वहाँ पर भी पेट्रोल का यूज़ हो रहा है। और हमारे जो जनरेटर्स होते हैं, उन जनरेटर्स के अंदर भी पेट्रोल का यूज़ होता है। ओके। और उस आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एक रिसोर्स है जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये हमारी स्कैरसिटी के प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है, बिकॉज एक चीज़ को हम एक तरीके से यूज़ कर लेंगे तो बाकी यूजेस के लिए उसकी कमी हो जाएगी। व्हाट डज इट मीन? It means whenever a commodity is chosen for one use, other valuable uses will have to be sacrificed. It gives rise to the problem of choice. इस वजह से हमें उन सारे यूजेस में से चूज करना पड़ता है। जैसे अगर मैं अगर हमारी कंट्री में जितना भी पेट्रोल है, मैं उसको सिर्फ हाउस होल्ड कंजम्पशन के अंदर ही लगा दूं, कि मैं सिर्फ उसको व्हीकल्स रन करने में ही यूज़ करूंगी, जैसे हमारे कार, ट्रक्स एंड ऑल, सिर्फ उसी में यूज़ करूंगी, तो हमारा पेट्रोल हमारी इंडस्ट्रीज के लिए कम पड़ जाएगा। वहाँ पर हमें कंपैरेटिवली कम यूज़ करना पड़ेगा। जैसे जो हमारी सॉल्वेंट इंडस्ट्री है और हमारे जो पेट्रोल है उसी के डेरिवेटिव्स ही यूज़ होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर मेकिंग के अंदर प्लास्टिक्स भी उसकी मदद से ही बनता है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर पेट्रोल का यूज़ हमें कम करना पड़ेगा। ओके। तो एक यूज़ को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारे जो बाकी के यूजेस हैं उनको हमें समहाउ कम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है ऐसा? क्योंकि रिसोर्स हमारे स्केर्स हैं, रिसोर्स हमारे लिमिटेड है। अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पेट्रोल दुनिया में नहीं है। Okay. So it gives rise to the problem of what? Rise to the problem of choice. Choice क्या हुआ कि हमें चूज करना पड़ रहा है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस में से कि विच यूज आई एम गोइंग टू यूज फर्स्ट। तो इससे हमें क्या समझ आया कि चॉइस एंड स्कैरसिटी गो टुगेदर, दे गो हैंड इन हैंड। इवन द रिचेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल नीड्स ऑफ देयर पीपल। कैसे रिचेस्ट इकोनॉमीज क्या है? हमारे दिमाग में रिच इकोनॉमीज, रिच कंट्रीज के नाम पे हमेशा आता है यूएस, फ्रांस, यूके, जर्मनी, ये सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारे दिमाग में आती हैं कि इनके पास तो बहुत पैसा है, ये तो अपने लोगों के सारी की सारी डिमांड फुलफिल कर देते होंगे। बट इट इज नॉट ट्रू। इवन द रिचेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड दे ऑल्सो हैव टू चूज बिकॉज ऑफ इट।
कैसे? अगर उनके पास सारी की सारी ही रिसोर्सेज होती, तो क्या वो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हमारे जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इन सब से जाके क्या वो ऑयल खरीदते? नहीं, कभी भी नहीं खरीदते अगर उनके पास ही सब कुछ था तो, ठीक है? तो उन्हें जब बाकी जगहों से बाहर से जाके सामान मंगवाना पड़ता है, क्या वो उनके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, तो वो हमारे देश से आउटसोर्सिंग करके लोगों से जॉब लेते? क्या वो इंडियंस को हायर करते, यूएस वाले, अगर उनके पास इतने ही ज़्यादा लोग उनकी कंट्री में अवेलेबल थे तो? बट नहीं, there it means the resources in the richest countries are also scarce. सभी को scarcity की प्रॉब्लम होती है and they also have to choose between the best possible uses and resources. तो ठीक है, इफ रिसोर्सेज वर ऑल्सो अनलिमिटेड, तो फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती ही नहीं। अगर रिसोर्सेज को हम अनलिमिटेड कर देते तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, तो फिर हम क्यों ही पढ़ते ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, या फिर हमें चूज ही नहीं करना पड़ता, सबके लिए सब कुछ होता, जिसको जितना, हमारे खुद के घरों में तेल के कुएं होते और हम वहीं से अपना बढ़िया पेट्रोल निकालते, पेट्रोलियम, और अलग अलग तरीके से यूज करते, हमें कोई भी इम्पोर्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। जो इतने हैवी पेट्रोल प्राइसेस हैं, हमें वो पे ही नहीं करने पड़ रहे होते, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सनल पेट्रोल होता ना। So I hope it is clear कि resources in the world are limited, the human wants are unlimited, and the resources have alternative uses. Hence, an economic problem can be reduced to a problem of choice. ठीक है, choice of what? Choice involving satisfaction of unlimited human wants out of the limited resources having alternative uses. ये problem of choice और ये सारी conditions ही द रीजन है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द फर्स्ट प्लेस। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद हमें इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ना होता। ये बेस है, ये रूट है कि इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम्स और जो सोल्यूशंस हम ढूंढते हैं उस चीज का। तो हमने पढ़ लिया कि हमारे रिसोर्सेज तो स्कैर्स हैं। फिर हमने एक और टर्म देखी कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड मतलब कि दे आर नेवर एंडिंग, एंड दे आर नेवर, वी आर नेवर फुल्ली सेटिस्फाइड ऑल्सो, कि हमें आज कोई चीज़ मिल गई तो हमें कल ज़्यादा चाहिए, कि नहीं मुझे आज ये वाला फ़ोन मिल गया तो कल मुझे उसका अपग्रेडेड वर्जन चाहिए, कल मुझे लैपटॉप भी चाहिए, कल मुझे आईपैड भी चाहिए, कल मुझे स्कूटी भी चाहिए, बाइक भी चाहिए। तो हमारी वॉन्ट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, दे आर नेवर एंडिंग। बट इन वॉन्ट्स की बस एक ही अच्छी बात है कि द वॉन्ट्स ऑल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज़। कैसे? कि हमारी जो वांट्स हैं वो हमेशा अलग अलग प्रायोरिटी होती है। लाइक यू पीपल आर स्टडिंग राइट नाउ, आप अभी क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है। एग्जाम पास आते वक्त अगर आप पढ़ने की जगह पे अभी आप खेलने चले जाओगे तो इट विल बी योर लॉस। तो अभी आप क्या प्रायोरिटाइज करोगे कि मेरे एग्जाम पास आ रहे हैं, अभी मेरे लिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है खेलने से। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि नाउ यू हैव प्रायोरिटाइज, आपकी वांट्स तो दोनों ही है, आपको खेलना भी जरूरी है, आपको पढ़ना भी जरूरी है। बट वाई आर यू चूजिंग कि why are you choosing to study right now? Because it is more important. You know what is more important and less important for you. You are prioritizing something over something else. So because of this ability of wants to be prioritized and to be ranked as 1 2 3 most important, least important, हम ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को somehow मैनेज और सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर सारी की सारी ह्यूमन वॉन्ट्स had been of equal importance, then it would have become impossible to make any choice. अगर कोई उसके अंदर कंपैरिजन ही नहीं होता, कम ज्यादा ही नहीं होता, तो हम कभी चूज ही नहीं कर पाते। We would not have been able to do any work at all. I hope this is clear. And the third thing is resource limited, unlimited human wants, and then resources having alternative uses. ये भी हमने देख लिया, बहुत सारे uses होते हैं और इन सब के कारण क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। ओके, सो हमारी डेफिनेशन का हमने क्या क्या पार्ट कवर किया? हमने ये पढ़ लिया कि इट इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यहाँ तक हमें क्लियर है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब ये सब जो हमने देखा, हम चूज कर रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज को, तो हम उसे क्यों चूज कर रहे हैं? चॉइस करके हम करेंगे क्या आगे? वी विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। क्यों प्रोड्यूस करेंगे? हमने देखा था ना, इकोनॉमी के 3 एसेंशियल फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। तो हमें वो चीजें करनी है, और वो भी क्यों करनी थी? टू अर्न अ लाइवलीहुड, ताकि हम पैसे कमा सकें, ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी सकें। ओके तो उसके लिए हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, टू कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। ओके, टू कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, that is
that is production. Then distributing these goods and services among different groups of people. इसका मतलब क्या है, जो अब प्रोड्यूस हो गया उसको लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, whether we are producing the good to the rich और टू द पुअर्स। ठीक है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा गुड किसके लिए मेजरली बना हुआ है। जो बेसिक नेसेसिटी के जितने भी गुड्स हैं हमारे, जैसे खा रोटी कपड़ा मकान, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ एवरीवन। तो ये सब जो गुड्स हैं, दी शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव कि वो रिच है या पुअर है। ओके तो जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, उसका अगर आइडियल सोल्यूशन, आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन हम पूछें कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, कैसे बांटे सारी रिसोर्सेज को लोगों के बीच में, तो इट शुड बी कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग है, वो सबके फुलफिल होने चाहिए, वेदर ही इज रिच और पुअर। बट जो लग्जरी नीड्स हैं, जो उसके अलावा जो भी नीड्स हैं सबकी, दे शुड बी फुलफिल्ड ऑफ मैक्सिमम पीपल पॉसिबल। ठीक है, जितने ज्यादा मैक्सिमम लोगों की हम वो नीड्स फुलफिल कर सकते हैं, वो सब फुलफिल होनी चाहिए। ये तो है ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात। पर हम धीरे धीरे देखेंगे इकोनॉमिक्स में आगे, जैसे हमारा सब्जेक्ट आगे आगे ग्रो करेगा, कि कैसे हम ये रिसोर्सेस की, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। अब आपको इस चीज के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि प्रोडक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मुझे ये अभी थोड़ा सा कम समझ आ रहा है। इसके अंदर कितनी सारी नई चीजें हैं, ये किस चीजों की बातें हो रही हैं। डोंट वरी, वी हैव एंटायर चैप्टर्स ऑन दीज थिंग्स। हमें धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास, सो गो ईजी ऑन योर सेल्फ। आपको सब कुछ, बस अभी आपको धीरे धीरे ये जो भी टर्म्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको इनको क्लियरली समझने की ट्राई करनी है, एंड यू हैव टू acclimatize yourself with them. Gradually you will understand everything. Have a little patience with me. देन हमने ये सब कंप्लीट किया। अब हम एक क्विक सा रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज एन इकोनॉमी एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी क्या था, एक सिस्टम है विच प्रोवाइड्स मीन्स टू अर्न लिविंग टू द पीपल। इसके अंदर तीन असेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी होती हैं, दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट वाज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमी को पढ़ता है, इकोनॉमी और उसके डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ता है। और इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है बिकॉज इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर and it studies how people choose to use scarce resources having alternative uses to produce and distribute the goods and services. अब ये सब क्यों करना पड़ रहा है इकोनॉमिक्स को? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हैविंग मोर देन वन यूज। और इसके कारण, स्कैरसिटी के कारण हमें क्या प्रॉब्लम अराइज होती है? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, and it is the basis why economic problems exist in the first place. I hope every concept that I have taught you today is clear to everyone. And this is it for today's class. Thank you so much. In the next class, we are going to understand new concepts like positive and normative economics, microeconomics, and which includes our first topic, central problems of an economy. Okay, so stay tuned for regular updates. And if you like the video, you can like and subscribe the channel and share it with your friends. I will see you in next class. Thank you.